Hello student, today we are going to discuss lesson number 9, reproduction in animals. Reproduction is very important characteristics possessed by all living organisms. रिप्रोडक्शन की वजह से ही एक ही प्रकार की प्रजातियों की संख्या बढ़ती है. Reproduction is the very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation. There are two modes of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction where two parents are responsible for the production of the new individual. Asexual production where only one parent is responsible for the production of new individual. In previous class you have studied about the asexual reproduction found in plant. Now in this class you will study about the reproduction in animals, sexual reproduction in animals. Sexual reproduction in which two gametes from male and female parent take part in the process of fertilization, and after fertilization zygote is formed. Zygote develops into new individual. दोनों गैमेट से, मेल पेरेंट से एक गैमेट और फीमेल पेरेंट से एक गैमेट, ये दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं और उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. और दोनों गैमेट्स मिलने के बाद में दोनों गैमेट्स से एक जाइगोट का निर्माण होता है. जाइगोट बहुत जल्दी डेवलप होके न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं. तो इस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. हम आगे इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे कि गैमेट्स क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा गैमेट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इन दिस चैप्टर we are going to study about the reproductive organ and reproduction in humans. Male reproductive organ. The male reproductive organ include the pair of testes. This structure is known as the testes. Testes are situated in pair. Two sperm duct. This duct is known as the sperm duct. It is also in pair. The testes produce the male gamete called sperms. Inside the testes, the production of male gamete takes place. The name of male gamete is sperms. Here is the structure of sperm. Look at the figure 9.2 which shows the picture of sperm. Though the sperm is very small in size, each has a head, middle piece and tail. Each sperm has three structures: head, middle piece and tail. With the help of this tail, sperms move from one place to the another place. Means sperms are not steady, they are always in moving condition. So this is the male reproductive organs in human. The male reproductive organ has one penis, two testes, two sperm duct open in urinary bladder. This bag-like structure is known urinary bladder. This urinary bladder is function as to store the urine as well as to store the sperm. Female reproductive organs. Female reproductive organs are a pair of ovaries, oviduct and uterus. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक यूटेरस होता है, इस स्ट्रक्चर को यूटेरस कहते हैं. एक जोड़ी ओवरी होती है, एक जोड़ी ओविडक्ट होती है. ओविडक्ट का अगला सिरा फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है.
The ovary produces eggs. This is the structure of egg. ओवरी के अंदर जिस तरह से टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होती है, स्पर्म इज द मेल गैमेट, sperm is the male gamete and egg is the female gamete. Human being, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. हर महीने, प्रत्येक महीने लेडीज में ओवरी एग जनरेट करती है और उसमें से एग रिलीज होके ओविडक्ट के अंदर जाती है. यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस. यूटेरस उस भाग को कहते हैं जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है. लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल. स्पर्म की तरह एग भी सिंगल सेल होता है, एक ही सेल का बना हुआ होता है. स्पर्म भी एक सेल का बना हुआ होता है और एग भी एक सेल का बना हुआ होता है. नाउ फर्टिलाइजेशन. Fusion of the male gamete with female gamete is known as fertilization. Its mean fusion of egg and the sperm is called fertilization. Egg और sperm के मिलन को ही fertilization कहा जाता है. During the fertilization, nuclei of sperm and egg fuse to form a single nucleus. See the figure number 9.6. यहाँ पर sperm का न्यूक्लियस और एक का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है. और जो नया स्ट्रक्चर, नया सेल का निर्माण होता है, न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है, उस न्यू सेल को जाइगोट कहते हैं. द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और जाइगोट. उस फर्टिलाइज एग को जाइगोट कहा जाता है. जाइगोट हैज सिंगल न्यूक्लियस. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, you can see the process of fertilization in figure number 9.5. Many of the sperms float towards the egg, but only one sperm has a capable to penetrate the egg cell. बहुत से स्पर्म एग की ओर फ्लोट करते हैं, मगर उनमें से कोई एक स्पर्म ही सक्सेस होता है एग के अंदर दाखिल होने में. और जैसे वो दाखिल होता है तो उसका न्यूक्लियस एक के न्यूक्लियस से मिल जाता है और एक ही सेल का निर्माण होता है और उस एक सिंगल सेल को जाइगोट कहते हैं. द फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम मदर. फर्टिलाइजेशन में मदर की तरफ से एग सेल आता है और फादर की तरफ से स्पर्म सेल आता है और दोनों मिलकर फिर जाइगोट का निर्माण होता है. तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. Fertilization which take place inside the female body. Fertilization are of two type. If fertilization take place inside the female body, then that fertilization is known as internal fertilization. Internal fertilization is found in human, cows, dog and hens. There are lot of animals, but few examples are given here. And if fertilization take place outside the female body, then that fertilization is known as external fertilization. External fertilization also found in some living organism. For example, in frog. In frog, external fertilization is take place. How it is take place? Let we see. During the spring and rainy season, frogs and toads move to the pond and slow flowing streams. बरसात के दिनों में मेंढक और जो छोटे मेंढक होते हैं उसे टोड कहते हैं, ये दोनों ही तालाबों में ये दिखाई देते हैं, पानी के किनारे, ज़मीन पर ये दिखाई देते हैं और ये पानी में मूव करते हैं. अगर वो ज़मीन पर है तो वो ज़मीन में ही रहते हैं दूसरे सीज़न में और वो लैंड से पॉन्ड मतलब वाटर की ओर मूव करते हैं रेनी सीजन में. व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, और मेल और फीमेल दोनों पास में आते हैं, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स. फीमेल फ्रॉग लेज 100 ऑफ एग्स.
100 से भी अधिक अंडे फीमेल फ्रॉग एक समय में देती है। अनलाइक hen eggs, frog eggs is not covered by a shell. hen egg की तरह फ्रॉग के जो एग्स होते हैं वो सेल के द्वारा कवर नहीं होते, हार्ड सेल के द्वारा कवर नहीं होते हैं, वो प्रोटेक्टेड होते हैं जेली लाइक सब्सटेंस के द्वारा। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर, ये सभी अंडों को एक स्थान पर बांधे रखती है। एंड प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द एग्स, और एग को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। एज द एग्स आर लेड, और जैसे ही मादा मेंढक के द्वारा अंडे छोड़े जाते हैं वैसे ही उसी समय द मेल फ्रॉग डिपॉजिट द स्पर्म्स ओवर देम, उसी समय मेल फ्रॉग उन अंडों के ऊपर अपना स्पर्म छोड़ देती है। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, और सारे स्पर्म्स जो है टेल की मदद से वो एक की ओर मूव करते हैं। द स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द एग्स, उसके बाद में जिस तरह से अभी हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में देखा कि ये स्पर्म्स एक की ओर मूव करते हैं और उनमें से कोई एक स्पर्म ही एक अंडे के अंदर जा पाता है। इस तरह से सारे अंडे फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं मेल स्पर्म के द्वारा, और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बिकॉज दिस फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द फीमेल फ्रॉग बॉडी, इजंट इट? तो such type of fertilization take place in aquatic animals, प्राणियों में ये इस तरह का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, फिश, स्टारफिश, फ्रॉग एक्सेट्रा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज एग जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है एंड जाइगोट डेवलप किस में हो जाता है? एम्ब्रियो में। जाइगोट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड्स रेपिटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल। ये जो जाइगोट हमने पिछले इसमें देखा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में एग जो है जाइगोट के रूप में बदल जाता है और जाइगोट जो है बहुत जल्दी डिवाइड होके एक सेल का ग्रुप बन जाता है, बॉल ऑफ सेल बन जाता है, ये कोशिकाओं का एक बॉल बन जाता है और इस बॉल को ही एम्ब्रियो कहा जाता है। द सेल देन बिगिंस टू ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और अलग अलग सेलों का ग्रुप बन जाता है। इस डिफरेंट सेल ग्रुप से डिफरेंट टिश्यूज का निर्माण होते हैं और डिफरेंट टिश्यूज से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का निर्माण होता है और इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहा जाता है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो यूटेरस के दीवार से चिपक जाती है और आगे का डेवलपमेंट ये इसी यूटेरस के अंदर होते रहता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। यूटेरस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आईज, एयर्स एक्सेट्रा। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो सेल के ग्रुप बने थे, अलग अलग ग्रुप से अलग अलग बॉडी पार्ट्स का निर्माण होता है। हैंड, लेग्स, हेड, आईज, एयर्स, सारे बॉडी पार्ट्स का निर्माण इसी ग्रुप ऑफ सेल से होता है। इस स्टेज को द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड ए फीटस। एम्ब्रियो के उस स्टेज को फीटस कहते हैं जिस स्टेज में सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है। तो एम्ब्रियो के उस स्टेज को फीटस कहा जाता है जिस स्टेज में एम्ब्रियो के जिस स्टेज में बॉडी पार्ट्स स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं। When the development of fetus is complete, the mother give rise to the baby। जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो जो मदर है वो बच्चे को जन्म देती है। इस पिक्चर में दिखाया गया है बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है और इसके बाद इसका बर्थ होगा। तो इन ह्यूमन बींग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड होल डेवलपमेंट also going out
inside the female body. Now animals are of two types, viviparous and oviparous animal. The animals which give birth to young one is called viviparous animal. जो जानवर डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे जानवरों को, ऐसे एनिमल्स को विविपेरस एनिमल्स कहा जाता है. एंड दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल. और जो जानवर अंडे देते हैं फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो ऐसे जानवरों को विविपेरस एनिमल्स कहते हैं.